Good morning. Now, children, there are some standby instructions which I need to tell you. Now, the project has to be made on a blue covered file. Okay, that means you'll take a file and cover it with blue color, and the color could be anything, any of the colors of the shade blue. Okay, it can be dark blue, light blue, whatever you choose. Okay, then secondly, on top that blue cover, you will write your name, your class and section, your roll number, and the subject. What is the subject? The subject is Art Integration Project. Yes, Art Integration Project. And you can write Art Integration, or you can also write Art Integration Project. Then after that, you will decorate that file beautifully, give it a nice look. Then inside, you will use the punch papers. The punch papers will be interleaved, one side blank, one side ruled. So the first paper that we will open will be the ruled paper, isn't it? Now on that ruled paper, that will be your cover paper. You will be writing your name, your class and section, your roll number, your school's name, the session, that means 2021, 2022. After that, you'll write your father's name, your mother's name. Is there any doubt till here? Excuse me, ma'am. No. Ma'am, my cover page is of 2 pages. No, it can't be of 2 pages. Sorry, there has to be subject and topic also. Subject is art integration and topic is folk music and musical instruments of Meghalaya. Why did you do it in 2 pages, child? Because, ma'am, it is so. Ma'am, there are 9 topics in the cover page. You should have fitted accordingly. Okay, ma'am. That's a totally waste of punch paper. Now, since you have done it in 2 pages, nobody is going to go through all that very, intricately. So just do, be neat, and that's it. Nobody is bothered. Okay, what is your father's name and mother's name? But it has to be there. So even if you write it in a simple way using a few colored pens, it is highlighted. It is there at least. So don't waste time on all that. Your exams are also approaching, children. I called purposely. Firstly, I thought ki if you will have problems, you will call. But then I decided that let me call and tell them. This is just a project which will be submitted in the board exam. I mean, in the boards. CBSE board wants it. And you have to take it seriously to the level that you do not let your work suffer because of it. Now, coming to the next page, page 2. That is your index. Please see that the serial number is given, the subject is given, and the topic is given. Okay? The order of the subjects in which you will arrange your file will be English, Hindi, Maths, Science, and Social Science. Now, I know personally that English, Hindi, and Social Science, they are going to be very attractive. That is why in the beginning I have kept 2 attractive things, and then in the end I have kept 1 attractive. Ma'am? Yes. Ma'am, ma'am, which type of file you have to use? Ma'am, I have bought a cardboard cover file. I'm not getting you. Please be a little clear. Ma'am, you have to get a cardboard cover file. Cardboard cover? File, ma'am, cover file, ma'am, in which we will make a project. Well, I don't know what kind of a cover you want, because I think that files you get it on the
in the market, in the stationery shop. I don't know how are you going to create that. You are asking the texture of the file. You go and get it in the market, whatever they give you. Yes, that is good enough. That is good enough. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I have made my English project and ma'am, it has come in two, ma'am, 1 page and 1.5 page. Very good. Keep on adding pages. I don't mind. Child, all I know, what you do is your choice. I'm not stopping you. Keep on doing, no problem. Even if it comes in 10 pages, I don't mind. I gave you the word limit. If you are crossing the word limit, first blunder you are already doing. Do whatever you feel like, child, because I know I gave 100 to 150 words and that will fit in one page. But if you have something more and you think it will be very impressive, it will be impressive. No doubt, if you write history about it, it will be very impressive. Puri kahani likh dogi, it will be very impressive. But then the clause was 100 to 150 words and you are crossing that. That means after 150 words, no teacher will read it. This is the call just to tell you your mistakes, the common mistakes that you do. Then coming to Hindi, your Hindi teacher will also give you certain project. So the backside of your English project will be used to decorate the Hindi project. That also, if you want to do it in 10 pages, who cares? Children, who cares? You have to follow a certain limit. तुम्हें मन में पता है कि ये सब repetition ही कर रहे हो तुम लोग. तब भी फालतू में don't waste your energy and time. उसको रिप्रेजेंटेबल बनाओ, उसको सुंदर बनाओ, उसको सिर्फ उतना बनाओ जो तुम्हें ज्ञान, जितने ज्ञान की जरूरत है. Unnecessarily कि oh no, let me show it to ma'am that I did this, I did that. God, good heavens, you are wasting time. उतनी देर तो अपने कोई सब्जेक्ट को उठा के पढ़ लो. Finish off all this project work in 3 days, okay? Not even 5 days I'm saying finish it off in 3 days. नीटली लिखो, 2 पेन से भी लिखोगे तो भी अगर नीटली लिख रहे हो तो तुम्हें 10 कलर्स की जरूरत ही नहीं है. इंप्रेसिव बनाना है, एक ही दिन में 15 फोटोग्राफ्स ढूंढो और उसके बाद उनको फोटोस्टैट करा लो, कलर्ड प्रिंटर से प्रिंट आउट करा लो, उनको काट काट के साइड में चिपका दो, फिनिश. आपको वो जो चीज आप लिख रहे हो उसको समझना जरूरी है, दैट्स इट. और इससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है. You have to be very enthusiastic in doing, but not कि you are wasting your time on it. भाई सी, अगर तुम कोई भी चीज पढ़ के लिख रहे हो, गूगल से सर्च करके लिख रहे हो, यानी कि तुम पढ़ तो रहे हो ना उस चीज को, यानी कि तुमको ज्ञान तो उस चीज के बारे में आ ही रहा है ना. बस इतना ही चाहिए बोर्ड को. बोर्ड चाहता है कि आपको न केवल अपने स्टेट के बारे में पता हो, बल्कि स्पेसिफिकली मेघालय के भी बारे में पता हो. सिंपल सी बात है, दैट्स इट. उसमें आप लोगों के ऊपर है कि अब आप लोग कितना फैंसी कर रहे हो. भाई करो फैंसी, लेकिन फटाफट डिसाइड कर लो कि अच्छा मुझे इसको, इस पेज को फैंसी बनाने के लिए ये 4 पिक्चर्स चाहिए. अगले प्रोजेक्ट में मैम ने ये बोला, अच्छा इसके लिए ये 4 पिक्चर्स सही रहेंगी. साइंस के लिए अच्छा थोड़ा साइंटिफिक चाहिए, उसमें वो 6 हो जाएंगी. भाई चलो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दे रहे हैं टीचर्स, उसमें ऑलरेडी 3 पेजेस से 4 पेजेस तुम लोग लगाओगे ही. अब तुम्हें अगर हर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 2 पेजेस लगाने बढ़ाते जो, जितना बढ़ाओगे उतना तुम ही लोग को डेकोरेट करना पड़ेगा. बेवजह का डेकोरेशन करोगे फालतू में. वेयरएज अगर अकल से करोगे ना, तो तुमको पता है कि टीचर ने ये हेडिंग दी है, इसमें मैं अगर 100 वर्ड्स भी लिख दूं तो मेरा 1 पेज कवर हो जाएगा और नीचे की थोड़ी सी जगह बचेगी, उसी में मैं फिजिक्स का शुरू कर दूंगा, वो खत्म होगी, उसी में मैं केमिस्ट्री का शुरू कर दूंगा. 2 पेजेस में तुम्हारा साइंस आ जाना चाहिए. नहीं आता है कोई बात नहीं, तुम लोग 10 पेजेस भी लगाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं है. मैंने जब फर्स्ट डे तुम लोगों को बोला था 5 पेजेस, तो मैंने मन में सोचा कि भाई तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैम कैसी हैं, बट तुम लोग जरा शांति से ये सोच के देखो, मैम ने तुम ही लोग की भलाई के लिए बोला था. ठीक है ना, कि भाई बच्चे लोग अपना टाइम बहुत सारा ना वेस्ट करें, बिकॉज इन द लॉन्ग रन
आपने जो लिखा है उसको आपको याद नहीं करना है, वो लिखा है आपको सिर्फ ये समझने के लिए। तो वो तो अगर तुम लोग रीडिंग कर रहे होते तभी समझ जाते, बट सिंस वी हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट बोर्ड हैज सेड, तो उसके लिए आपको थरो रीडिंग करनी चाहिए। वो रीडिंग आप लिखते लिखते करोगे तो और अच्छी हो जाएगी। बस इतना चाहिए था, दैट्स इट। अब वही है कि मैं रूल्स के अगेंस्ट तो जा नहीं सकती हूँ। मैंने तो कहा था कि ओके मेक इट इन लेसर पेजेस, बट देन द टीचर्स, द सब्जेक्ट टीचर्स, उनको चाहिए कि डिटेल्स, तो आई विल नॉट गो अगेंस्ट देम, ऑब्वियसली आई विल नॉट गो अगेंस्ट देम। अब इसमें आफत किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। डिटेलिंग इतनी जरूरी नहीं है कि आप लिखो, जितनी की जरूरी है कि आप पढ़ लो, काफी है। आप उतना ही लिखो, क्योंकि अगर गूगल पे आप उतारने चलोगे तो कितना वास्ट है उसमें लिखा हुआ। क्या पूरा गूगल उतार दोगे? नहीं उतार पाओगे बेटा। तो उतना लिखो जो तुम्हारे लिए नॉलेजेबल है, जो तुमको लगता है कि तुम सारी जिंदगी ये जो प्रोजेक्ट पढ़ा है उसमें से याद कर पाओगे। अगर उन बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी तुम्हें याद रह गए, वो किससे बने हैं वो तुम्हें याद रह गए, दैट इज मोर देन इनफ। देन कम्स सोशल साइंस। सोशल साइंस अट्रैक्टिव है, उसमें आप उसकी हिस्ट्री लिख सकते हो कि भाई ये फोक म्यूजिक कब से चली आ रही है, किस जमाने से चली आ रही है, कौन कौन से पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन आज भी यूज होते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने थोड़ा सा सेक्शन दे ही दिया है, बल्कि तुम्हारी जोगो टीचर ने दे ही दिया है उसका सेक्शन कि भाई उनकी वो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड बता दो। तो ऑब्वियस है, अगर मेघालय में बैम्बू के बने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि वहां पर बैम्बू खूब सारा ग्रो होता है, तो भाई बैम्बू कहाँ ग्रो होता है, उसका सॉइल टाइप लिख दो, उसका टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब मेंशन कर दो। इससे ज्यादा और सुंदर कहानी और तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है? जो पूछा गया है वो अगर आपने सुंदरता से, अकलमंदी से, यूजिंग योर ब्रेन्स, इफ यू डू थिंग्स करेक्टली, half of your work is done. And trust me, none of the teachers will get impressed कि अरे वाह इस बच्चे ने तो 20 pages की फाइल बनाई है, भाई बहुत इसने स्टडी किया। Nobody is going to get impressed. तुमको भी मन में पता होगा, तुमको भी मन में पता होगा कि pages do not make a difference in your knowledge. एक आप एग्जाम में जो शीट्स ले लेके पेजेस भरते हो ना कि अरे मैंने तो सेकंड शीट भी ली थी, लेकिन अगर उसमें तुम दो दो चार चार लाइंस छोड़ छोड़ के लिख रहे हो, टीचर को पता चल जाता है कि तुमको आता है इसलिए तुमने नेक्स्ट पेजेस लिए हैं, या तुमको कुछ नहीं आता था इसलिए तुमने दिखावे में लिए हैं 2 पेजेस। और वी कम टू नो वी आर वाइजर देन यू ऑल, तभी तो हम तुम्हारे बच्चे हो और हम टीचर हैं। आज मैंने ये कॉल डेलिबरेटली किया कि मैं एटलीस्ट तुम लोगों का टाइम वेस्ट होने से रोक पाऊं। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, कल मैं समझा चुकी थी। सो नाउ सिट, रिलैक्स एंड जस्ट गिव इट अ थॉट कि अगर ये काम 3 दिन में फिनिश किया जा सकता है तो उसको 10 दिन में फिनिश करने की क्या जरूरत है? मैम ने 17 तक का की डेडलाइन दी है, लेकिन हमें और अपने सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि 17 के बाद से आपके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले होंगे, डेट्स और पास आ चुके होंगे, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स इसमें भी मिलेंगे, बट देन नो इट, नो टीचर गिव्स यू जीरो, no teacher gives you zero if you have, supposing this file is of 10 marks, supposing, though it is of no marks, I think only board wants it that the children should know about it, and that is why they have made it compulsory. But supposing ये 10 marks की है, तो ये कौन से रैंक में आपकी इंक्रीज कर देंगे? अगर आपका सोशल स्टडीज के आपने सारा समय प्रोजेक्ट करने में बता दिया और सोशल स्टडीज के 2 चैप्टर्स छूट गए, तो ये 10 मार्क्स वहां समझ लो वहां चले गए, खत्म, क्योंकि उसमें 0 मिल रहा होगा। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, अगर आप शांति से सोचोगे तो आप पाओगे ये पहली बार किसी टीचर ने आपको वो बातें बताई हैं जो कि बिल्कुल फैक्ट है। आपके पेरेंट्स भी घर में यही कह रहे होंगे, लो प्रोजेक्ट मिल गया है इन लोगों को, बोल रहे हैं ना सब, पढ़ाई के समय पे प्रोजेक्ट आया हुआ है, बोल रहे हैं होंगे ना, isn't it or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो अब बताओ, एक टीचर तुम्हारे पेरेंट्स की फीलिंग फील तभी कर सकती है जब वो तुमको अपना बच्चा मान के वर्क कर रही हो।
अब तुम समझ रहे हो मैं क्यों कह रही हूँ कि भाई द नंबर ऑफ पेजेस डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आपने जो 10 लाइनें लिखी हैं उनका मतलब आपको पता है कि नहीं पता है। जो 10 लाइनें लिखी हैं वो टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं है, ये मैटर करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता है, मुझे तो सिर्फ एक अपना साइन मारना है उसमें कि ओके दिस चाइल्ड हैज सेंट, दिस चाइल्ड हैज गॉट इट साइंड आल्सो, खत्म। बाकी आप पीडीएफ बनाओगे वो भी उसमें ही अटैच होगा जो बोर्ड में जाएगा। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? आपको देखो, पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आई एम सेइंग बी डेडिकेटेड टू एवरीथिंग, नॉट जस्ट वन थिंग। एंड मैं देख रही हूँ कल से आप लोगों का पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन हटके सिर्फ दिन रात ये फाइल, ये प्रोजेक्ट, ये फाइल, ये प्रोजेक्ट, इसी पे घूम रहा है। अभी सोच के देखो, जो जो टीचर्स ने टॉपिक दिए हैं उनका मटेरियल तुमको मतलब भर का गूगल पे मिल गया है कि नहीं मिल गया है? आंसर मी राइट नाउ, राइट नाउ। मतलब भर का प्रोजेक्ट मिल गया है Yes, कि नहीं ma'am. मिल गया? मिल गया है ना? Yes, ma'am. तब उससे ज्यादा तुम No, सबका ma'am. यस है ना? जिसने ढूंढा नहीं है उसको सब कुछ सेम ही मिल रहा है, बेटा, एवरीथिंग इज सेम। एवरीथिंग इज सेम, वही मैं आपसे कह रही हूँ। बस आप Can't बस अब find आप it. बेटा नहीं, लिसन लिसन, जो कह रहे हैं कांट फाइंड इट, उन्होंने यानी कि गूगल सर्च प्रॉपर्ली नहीं किया है, ठीक है? उसको तो तुम्हें फिर से करना पड़ेगा सर्च। अब जो कह रहे हैं कि सबका मोरलेस सेम मिल रहा है, ऑब्वियस है बेटा सेम ही मिलेगा, क्योंकि टॉपिक ही यही है। टॉपिक तो भाई, अगर मैंने तुमसे कहा तुम्हारा संडे कैसे बीता, तो तुम वही लिखोगे ना जो बीता जैसे। फिर मैंने उसको हिंदी में कहा, इंग्लिश में कहा हाउ डिड यू स्पेंड योर संडे, तब भी वही लिखोगे ना इंग्लिश में जो बीता है जैसे। फिर मैंने हिस्ट्री में कहा तुम अपना हर संडे अमूमन कैसे बिताते आए हो, तो भी तुम मोर और लेस थोड़ा बहुत सेम ही लिखोगे। तो जब टॉपिक ही एक है तो उसमें तुम कितनी कहानी बदल लोगे? भाई लॉजिकली उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लो कि अच्छा ये पोर्शन मैं इंग्लिश के प्रोजेक्ट में लिखूंगा, ये हिंदी में इसी का ट्रांसलेशन करके लिखूंगा, ये पर्टिकुलर चीज मैं सोशल साइंस में लिखूंगा, ये एस्पेक्ट मैं मैथ्स में लिखूंगा, ये एस्पेक्ट साइंस के नजरिए से लिखूंगा। और क्या चाहिए बच्चे? समझे आप लोग? आप लोग यस मैम, माय हिंदी एंड हाँ बेटा, इंग्लिश Yes, ma'am. प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आज आप लोग मेरी स्ट्रेटजी से वर्क करो। अब मैं आप लोगों की कमांड अपने हाथ में ले रही हूँ। लिसन, स्विच ऑफ योर माइक एंड लिसन 2 मिनट्स मोर। 2 मिनट और शांति से सुन लो। अब तुम लोग आज का एजेंडा सुन लो। आज सारे बच्चे अपने जितने भी टॉपिक्स मिले हैं उनको अपने सामने एक रफ पेपर, रफ कॉपी में सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स सामने रख के लिख लो कि मैम लोगों ने क्या टॉपिक्स दिए हैं। 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 टॉपिक्स मिले होंगे, ठीक है? 5 से ज्यादा 6, 7 और 8 टॉपिक्स मिले होंगे, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है और सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। 8 टॉपिक्स मिले होंगे तुम लोगों को, जो कि मोर और लेस इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है ना? अब आज तुम्हारा वर्क ये है, रफ रजिस्टर पे वो सारे टॉपिक्स लिख लो जो टीचर्स ने दिए। इसके बाद सबसे पहले गूगल पे 8 टॉपिक्स है ना, 8 1 8, 8 2 16, 8 24, 3, ऐसा करो 40 पिक्चर्स ढूंढ के निकाल लो, 40 पिक्चर्स फ्रॉम गूगल सर्च रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है? 40 पिक्चर्स इतनी होंगी कि भाई तुम्हारी कम नहीं पड़ेंगी, ज्यादा ही होंगी। देन गेट देम प्रिंटेड ऑन 4 पेपर्स और 8 पेपर्स, ठीक है? प्रिंटिंग करा लो, ये आज का काम कर लो। प्रिंटिंग करा के पेपर्स रेडी कर लो। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें लिखते जाना है और इधर लेफ्ट साइड पे उनको सिस्टमैटिकली चिपकाते जाना है। जब आप चिपका रहे हो तो उनके बारे में भी कुछ कुछ लिख दो, क्योंकि सिर्फ पिक्चर्स चिपका के क्या मतलब है, ठीक है ना? जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम ही लिख दो, पॉपुलर इन मेघालय लिख दो, या पॉपुलर इन वन ऑफ द प्लेसेस जहां मेघालय के ट्राइबल एरियाज में है वो पॉपुलर, या कहाँ पॉपुलर है वो लिख दो। जो लेफ्ट साइड पे लिखोगे वो कलरफुल पेन से भी लिख सकते हो,
पिक्चर्स की कमी है तो उधर ब्लैंक साइड पे भी गोद गोद के लिख डालो कलर पेन से, कुछ 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 कुछ। म्यूजिक के ऊपर एक दो कोट लिख दो भाई उधर लेफ्ट साइड पे, अगर पिक्चर्स की कमी है। देन अब आगे सुनो, आज का वर्क क्या है, सिर्फ अपना सारे प्रोजेक्ट्स के नाम लिख करके रफ कॉपी में उनके बारे में, उनकी पिक्चर्स नियरली 40 ढूंढ के उनको फोटोस्टैट आज ही करा के सब बच्चे रख लो, ठीक है। ये तो काम हो गया, ये तो पेरेंट्स में से कोई बेचारा दौड़ेगा और जाके करके आएगा आपके लिए। आप मन में डिसाइड कर लो कि आज दिन भर में मुझे 3 प्रोजेक्ट्स खत्म करने, 3 सब्जेक्ट्स खत्म करने, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, आज खत्म कर लो भाई। 1 या 2 या 3 पेजेस पूरे दिन भर में तुम लोग कर सकते हो। हम कहते हैं 6 पेजेस, वो भी कर सकते हो। 6 पेजेस तो हर 6 पीरियड में तुम्हारी टीचर्स तुम लोगों से एक पेज करा ही लेती होंगी। 6 पेजेस खत्म कर लो। कल साइंस और सोशल साइंस फिनिश करो। 2 दिन में प्रोजेक्ट किनारे करो, तीसरे दिन में उसको सब कंपाइल कर लो, उसके आगे की जो टॉपिक, सब टॉपिक और जो डेकोरेशन है वो करके खत्म करो। प्लीज डू नॉट प्रोलॉन्ग इट, और परसों से प्लीज पढ़ने बैठ जाओ। नाउ तुमको मैं बुरी लग रही होंगी, तुमको मैं डेविल लग रही होंगी, बट आज से ज्यादा इतनी हिंदी मैंने बीइंग एन इंग्लिश टीचर कभी नहीं बोली है तुम लोगों से। एंड इट इज ओनली बिकॉज तुम लोगों को मैं बिल्कुल अपनेपन से समझाना चाहती हूँ, जैसे आपकी मॉम एंड डैड आपको समझाते कि भाई प्रोजेक्ट करो, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द बोर्ड नीड्स इट एज अ प्रूफ। But at the very same time, your exams are approaching. You cannot spend days and days on it. 3 दिन, mind you, ये 3 दिन इससे ज्यादा जिसने भी किया वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों को मेरी बात से अगर ज़ील आ गई है या मोटिवेटेड हो गए हो तो आज जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। That is what my aim is. Am I clear to each of my loving children here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. अब एक जोश भरा सा यस मैम भेजो प्लीज। यस मैम। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। तो आज की डांट से आप लोग मुझसे खुट्टी तो नहीं होंगे? No, ma'am. इट वाज No. No, ma'am. No, ma'am. good. So now get motivated, pull your socks up, get ready for hard work and finish this now. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. अच्छा, अब लास्ट पार्ट और सुन लो। लास्ट पार्ट, जब ये सब बन जाएगा तब इसकी पीडीएफ बननी है। जब तुमको बिल्कुल सेटिस्फैक्शन हो जाए कि तुमने सब चीजें प्रॉपर्ली अरेंज कर ली है, तब कवर से, फाइल कवर से, दैट इज ब्लू कलर, उस कलर के पेज से फोटो खींचते चले जाओ लास्ट पेज। ओके? Okay, ma'am. Now, how will you rename your PDF? You will rename your PDF with your class and section first, 6A, and then your name. सब बच्चे सिर्फ यही लिखेंगे, कोई CLASS नहीं लिखेगा, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। You will rename your PDF as 6A, then your complete name, then your roll number. That's it. ठीक है? ठीक है? Okay, ma'am. Okay. चलो. Yes, ma'am. Any other Bye, ma'am. question? Bye bye. No. If you